آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب آئے آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ Assalamu alaikum to all of you. It's good to see the former Prime Minister Imran Khan here. PFUJ کا بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا یہاں بولنے کے لیے. I'll just take 5 minutes. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیمینار جو ہیں ان کو اٹینڈ کرنا اور بولنا خاصا خطرناک ہو چکا ہے. جو پچھلا سیمینار ہوا تھا 7 والے ہال کے اندر وہ کروایا تھا شعیب شاہین صاحب. پرانے سیمینار میں اسلام آباد بار ایسوسیشن نے کروایا تھا, یہ پی ایف یو نے کرایا, شاید کوئی تھوڑا لحاظ کر دیں. لیکن ایاز امیر صاحب جن کا سارا حملہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان پہ تھا, اگلے دن 6 لوگوں نے ان کی پٹائی کر دی لاہور کے اندر. عمران ریاض خان پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر, انہوں نے تقریر کی تھی, وہ گرفتار ہو گئے اور ڈسٹرکٹ کورٹ عدالت پھرتے رہے بڑی مشکل سے. سپیریئر جوڈیشری نے, میں اس پہ ذاتی طور پہ اس سے واقف ہوں کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول پاکستان کی جوڈیشری نے اس پہ انٹروین کیا اور لاہور ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ آپ سیٹرڈے کے دن یہ لگائیں, بیکاز جوڈیشری نے اس کا نوٹس لیا. دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. لیکن وہ بھی ہوا. خالد نعیم لودھی, اچھا سمیع ابراہیم صاحب سامنے بیٹھے ہیں, ان کو ہجڑے بھیجے گئے. پلان یہ تھا کہ ہجڑوں کو مارتے ہوئے ویڈیو بنائی جائے, پھر یہ کہا جائے کہ ان کے خلاف ایک FIR درج کی جائے. لیکن تھینکس کہ بول کی اپنا CCTV فوٹیج وہاں موجود تھی, جس کی وجہ سے وہ پولیس وہ FIR درج نہیں کر سکی. اور جنرل خالد لودھی جو ہیں, انہوں نے بولا تھا ان کی پتہ نہیں پینشن بند ہو گئی ہے, پلاٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کے کینسل ہو گئے. اب اس میں شعیب صاحب رہ گئے. مجھے نوٹس آ گئے ہیں کہ تقریباً 33 قسم کے, لیکن میرے بھی انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ صرف نوٹس ہی بھیجیں. تو یہ سیمینارز جو ہیں, اب یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا وجہ ہے. ایک بنیادی کویسچن میں آپ سب کے لیے چھوڑتا ہوں. حامد میر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, فرحت اللہ بابر صاحب کو میں دیکھ نہیں سکا لیکن موجود ہیں, فارمر پرائم منسٹر عمران خان یہاں موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن سے پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس کا یہ ایک بیسک کویسچن ہے جس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. انگریزی میں ایک اسکول رائم ہے, اسٹکس اینڈ اسٹونز میں بریک مائی بونز بٹ ورڈز ول نیور ہرٹ می. اور اسی کے اوپر جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کی ساری اساس جو ہے وہ اس ایک بیسک کانسیپٹ کے اوپر ہے کہ الفاظ ہوں گے سب کے. آپ کو الفاظ, اوپینین اور انالیسس سے اگر ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, آپ کے خلاف ہے, تو آپ اپنی دلیل, اپنا آرگومنٹ اس کے سامنے لے کر آئیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو مار دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ پاکستان میں آزادی صحافت, اگر ہم اس کو سیریسلی دیکھیں تو کوئی بھی کبھی بھی پاکستان میں 1950s سے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سیکیور نہیں تھی, اور اس کے راستے میں ہزاروں سینکڑوں قسم کی مشکلات تھیں. 1980 کی دہائی میں پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ کو کوڑے مارے گئے, گرفتاریاں ہوئیں, پابند سلاسل ہوئے, بہت سے لوگوں کو یہ ملک چھوڑ کے یورپ اور برطانیہ میں پناہ لینی پڑی. یہ 1980s میں ہوا. 1990s میں جب پولیٹیکل پارٹیز آئیں بھی تو انہوں نے بائی اینڈ لارج جو 80s کا کلچر تھا اسے انہوں نے کنٹینیو کیا, وہ اس میں سے نہیں نکل سکے. پھر یہ بھی ایک آئرنی اور تضاد ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو تھا اس نے ٹیلی ویژن چینلز کے تھرو ایک فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس نے آزادی دی. یہ اور بات ہے کہ 2007 میں جب اس کو خود چیلنج فیس ہوا پھر اس نے کریک ڈاؤن کیا, ٹیلی ویژن چینلز کو بند کیا. لیکن 2007 کے بعد سے بھی ایک یہاں کنونشن ضرور ایسی رہی کہ ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ 80 کی دہائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. تو جب ہم نے دیکھا کہ ایک پرومیننٹ, یہ صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی, اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی 2011 میں سلیم شہزاد جرنلسٹ جو ہیں انہیں قتل کیا گیا, باقاعدہ قتل کیا گیا. اس پہ انکوائری بیٹھی, کچھ معلوم نہیں ہو سکا. حامد میر صاحب سامنے بیٹھے ہیں. 2014 میں انہیں گولیاں ماری گئیں, ہم سب جانتے ہیں کس نے ماری. انکوائری بیٹھی, جوڈیشل انکوائری ٹائپ تھی, کوئی کسی نتیجے پہ وہ انکوائری نہیں پہنچ سکی. اور یہ تو یعنی اٹھایا بھی گیا, مارا بھی گیا, چھتوں سے لٹکایا بھی گیا, بال کاٹ دیے گئے, مختلف جگہوں پہ چھوڑ دیا گیا, اور یہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتا رہا. لیکن ایک بہت بڑا فرق جو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اس گزشتہ 20 برس میں جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, کسی حکومت نے, کسی رجیم نے اسے لیگلی, قانونی اور اخلاقی طور پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ایک فردر ڈیگریڈیشن ہو گئی. یعنی اٹھایا گیا, مارا گیا, ڈرایا دھمکایا گیا, لیکن جب مورل پریشر بلڈ اپ ہوا
सिविल सोसाइटी की तरफ से, मीडिया की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, ट्विटर क्राउड की तरफ से, तो 12 घंटे में 14 घंटे में छोड़ दिया गया और फिर लोगों के अंदर ट्रांसफ़र तबादले हो गए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, जैसा मतीउल्लाह जान के केस में हुआ कि जिन लोगों ने उठाया था उनकी इंटरनल इंक्वायरी और डिसिप्लिन उनका हुआ, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो गई, उनके कैरियर्स जो है इफ़ेक्ट हो गए। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से पंजाब के वज़ीर कानून मलिक अहमद ख़ान साहब ने, जो हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आते रहे, हर सहाफ़ी से उनका ताल्लुक़ रहा और हमने उनको बहुत ही एक मयाना रवी और मॉडरेट शख्सियत समझा। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जिस तरह से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया, जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद की थी, अदालत में आके ये पोजीशन ले ली IGP साहब ने, यानी पिक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं, फुटेज एग्जिस्ट करती है कि राइट एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द इस्लामाबाद मोटरवे जो टोल प्लाजा है वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और पोजीशन ये ले ली गई कि नहीं ये पंजाब में फॉल करता है ना, कि ICT की टेरिटरी जो है वो टोल प्लाजा से शुरू नहीं होती। ICT डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की टेरिटरी जो है वो टोल प्लाजा के आगे भी एक्सटेंड करती है, तो 5 फुट से तो उसका फैसला जो है वो नहीं हो जाता। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पोजीशन लेने के बाद इमरान रियाज़ को अटक ले जाया गया। अटक में बड़ी हिम्मत मैं समझता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जिनको पिक करने की ज़रूरत है कि वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो था उस पर कितना दबाव था, उसके बावजूद उसने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस का केस नहीं बनता और उसने कहा मुझे लगता है कि ये साइबर लॉ का केस बनता है। उन्होंने कहा कोर्ट नंबर 28 सेशन कोर्ट पिंडी में भेजा जाए। पिंडी में तो जज साहब की जितनी तारीफ़ की जाए, चौधरी परवेज़ खान साहब की जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आप अंदाज़ा लगाएं कि पिंडी में थे वो, ऑफ ऑल द प्लेसेस वो पिंडी में थे। उसके बावजूद उन्होंने, ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है ये जुडिशरी के लिए और लीगल कम्युनिटी के लिए। और FIA के जो एडिशनल डायरेक्टर आए उन्होंने कहा FIA का केस नहीं बनता, FIA इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके बाद परवेज़ खान ने, जो जज थे, मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने 7 में से 5 जो सेक्शंस या चार्जेस थे उनको उन्होंने ड्रॉप किया और वापस अटक के हवाले कर दिया। रात के 12 बजे इमरान रियाज़ को पुलिस लेके पहुंची और बाय दैट टाइम 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस जो थी वो वहाँ मौजूद थी, जिसमें चकवाल भी था, जिसमें लाहौर भी था, जिसमें गुजरांवाला भी था, जिसमें टोबर टेक्सिन भी था। तो जब वहाँ वो उसको लेके गए और वहाँ ही उसको उस सेल में बंद किया जिसमें केमिकल ड्रम थे, शायद उसका उस पर इफेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, ये बात बहुत अजीब है कि जिस किस्म के सिम्टम्स और साइन उसमें इस वक्त हेल्थ के आ रहे हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वगैरह, वो क्यों हो रहे हैं। बहरहाल तो जो 2.5 घंटे की समाअत थी अटक में, जो तनवीर असगर हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट, उन्होंने जो 8 पेज का डिसीजन लिखा वो पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये वही डिसीजन है, शोएब साहब से मशवरा करने के बाद, अनवर मंसूर खान से मशवरा करने के बाद, ये वही डिसीजन था अटक के तनवीर असगर साहब का जो मैंने सुपीरियर जुडिशरी को भेजा और मैंने उन्हें कहा कि देखें द लोअर जुडिशरी हैज़ ऑलरेडी टेकन अ पोजीशन ऑन दैट इशू। और उन्होंने ये कहा कि ये केस बिल्कुल भी गिरफ्तारी का केस नहीं बनता, इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, इस पर ये शख्स नहीं लगती हैं, मैं किसी किस्म का फिजिकल रिमांड इमरान रियाज़ खान का नहीं दे सकता। ये कह के उन्होंने भेजा चकवाल में इतनी बदमाशी की गई, इतनी अथॉरिटेरिज्म थी कि मैजिस्ट्रेट को केस सुनने नहीं दिया गया, उसकी अदालत जो थी उसको लगने नहीं दिया जाता था। बहरहाल उसके बावजूद उसको भी फ़िज़िकल कस्टडी मांगी गई, उसने फ़िज़िकल कस्टडी देने से इनकार कर दिया। तो जुडिशरी जो लोअर जुडिशरी है उसने पहली दफ़ा ये साबित किया कि उसकी एक स्पाइनल कॉर्ड है और कितना प्रेशर था, क्योंकि प्लान तो यही था कि 1-1.5 महीने तक आपको 18 FIR भुगतनी है और ईद पे घर जो है वो नहीं जाने देना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक हुकूमत के ज़िम्मेदार लॉ मिनिस्टर का डिफेंड करना है इस कंडक्ट को, ये मुझे लग रहा है कि एक फर्दर हम एक स्टेप डाउन, एक नॉच डाउन चले गए हैं। और इस पे पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, सिविल सोसाइटी को, लीगल कम्युनिटी, सबको सोचने की ज़रूरत है कि आप एक गलत इक़दाम को, एक तारीख कदम को आपने डिफेंड कर दिया है, कानूनी डिफेंड कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंड कर दिया ये। हैविंग सेड दिस थिंग, 5 ही मिनट मैंने लेने थे। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी और इससे पिछली हुकूमतों में भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर थे। ये सही है, ना PMLN ने किसी सहाफ़ी को उठाया, ना पीपल्स पार्टी ने किसी सहाफ़ी को उठाया, ना PTI ने किसी सहाफ़ी को उठाया तो जिन्होंने सही, लेकिन तमाम हुकूमतें मुख्तलिफ़ किस्म के गलत कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए उसको डिफेंड करती रहीं। खान साहब की हुकूमत जो है उस पर भी बड़ा प्रेशर था। फवाद चौधरी साहब मसलसल पी का एमेंडेड ऑर्डिनेंस, पहले तो नून लीग ने पी का ऑर्डिनेंस बनाया जो बड़ा फ्लॉड ऑर्डिनेंस था, उस वक्त भी उसकी बड़ी खप पड़ी, शोर मचा, PFUJ के प्लेटफॉर्म से उस वक्त भी उसकी मजम्मत हुई। फिर फवाद चौधरी साहब
पीका अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2016 को डिफेंड करते रहे, वो तो बड़ी मेहरबानी है अतर अल्लाह जस्टिस चीफ जस्टिस अतर बैन अल्लाह की कि उन्होंने इसको शूट डाउन कर दिया, वरना वही पीका अमेंडेड ऑर्डिनेंस जो है उसमें इस वक्त हम सबके खिलाफ इस्तेमाल होना था। और जो इस्तेमाल हुआ है उससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जो भी कानून बनता है उसके अंदर सेफ गार्ड्स नहीं हैं। अगर सेफ गार्ड्स होते हैं, क्योंकि हर लॉ जो दुनिया में कहीं पर भी बनता है उसमें सेफ गार्ड्स रखे जाते हैं, और यहाँ पे चूंकि बेतहाशा बुकला मौजूद हैं, वो समझते हैं कि सेफ गार्ड क्या चीज़ होती है ताकि वो कानून का मिसयूज़ ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान में जो भी कानून बनता है उसके अंदर इफेक्टिव सेफ गार्ड नहीं होते और उसका मिसयूज़ होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें बताया गया कि पीका मुल्क की सलामती की खातर, मुल्क के ऊपर जो हमले हो रहे हैं कौमी सलामती के लिए, लेकिन आप देखें कि जिन लोगों को पीका अमेंडेड ऑर्डिनेंस के तहत उन पर चार्जेस लगाई गई उसमें से कोई भी मुल्की सलामती का तो कोई इशू जो है वहाँ पर नहीं था। तो आई विल फिनिश बाय सेइंग दिस थिंग कि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम सियासी उसका ये मैंने पिछली दफ़ा भी यही कहा था, मैंने शायद इसी वजह से शायद छोड़ भी उन्होंने मुझे कि मैंने ये देखिए, यहाँ एक सियासी जमात इस अथॉरिटेरियनिज़म का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मुझे कम से कम मेरी जो 2 पेंस ओपिनियन है वो ये है कि जिस किस्म की अथॉरिटेरियनिज़म का मिजाज जो है हमारे इंतज़ामी ढांचे के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है, कोई एक सियासी जमात हाँ वो 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकती हो, वो भी इस अथॉरिटेरियनिज़म को सिंगल हैंडेडली हैंडल नहीं कर सकेगी। यहाँ एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जमातों के दरमियान। अब वो कंसेंसस बड़ा मुश्किल इसलिए है कि बड़ी पोलराइजेशन है, तो जो बेयर कॉमन, जो सबसे छोटे छोटे जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट हो सकती है, कॉमन डिनोमिनेटर, वो कॉमन डिनोमिनेटर को पिक करने की ज़रूरत है। और इसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके ऊपर इन जमातों को आपस में एक कमेटी कायम करनी चाहिए सेकंड टियर लीडरशिप पे, मैं नहीं कह रहा टॉप लीडरशिप के लेवल पे, सेकंड टियर लीडरशिप में। वो सेनेट में भी हो सकती है, वो सेनेट के बाहर भी हो सकती है, जहाँ ये कहें कि हम खड़े हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए और हम अथॉरिटेरियनिज्म जो है नहीं होने देंगे, हर किस्म की ओपिनियन और हर किस्म के एनालिसिस की इजाज़त होगी। थैंक यू सो मच।